atoms of the same element. Some numbers are the same, but two are different. They have the same electron number, proton number too, but the neutron number is different, so which isotope to choose? Stable isotopes of neutrons. Too many or too little, and they might just fall apart, fall apart, fall apart. Too many or too little, and they might just fall apart. Carbon-14, an atom who has 2 more neutrons, and neutrons are rarer than mean. Carbon-12, you will see when it decays. It won't take days or even decades. It got to that state by spinning out neutrons in forms of electromagnetic waves. So, before turning the page, count carbon-14 to tell you its age. Isotopes are atoms of the same element. Some numbers are the same, but two are different. They have the same electron number, proton number too, but the neutron number is different, so which isotope to choose? Isotopes are atoms of the same element. Some numbers are the same, but two are different. They have the same electron number, proton number too, but the neutron number is different, so which isotope to choose? Isotopes. Isotopes are the atoms of the same element. Some numbers are the same, but two are different. Isotopes, chapter number 2, last topic of structure of atom. So let's start. Let's see which number are the same and which are different. These are basically two identical twins. Physically they are same है, लेकिन जब हम इनका weight करते हैं, one way is slightly heavier than the other. So in chemistry we can say these are the two isotopes. We know that atom is made up of proton, neutron and electron. Proton and neutron are in the nucleus while electrons revolve around the nucleus. Atomic number shows the number of the proton while the atomic mass shows the number of the proton and the neutrons. In a neutral atom we know number of the proton and number of electrons are equal. What are the isotopes? These are basically the variants of the atom that have the same number of proton but they have different number of neutrons. Same number of protons means they have the same atomic number, while the number of while atomic mass is the number of proton and neutron, so they have the same atomic number but different mass numbers. Let's consider the isotopes of the hydrogen. There are the 3 isotopes of hydrogen. There are basically the 3 variants of hydrogen atom, and one is the protium, other is deuterium, and third one is tritium. Let's calculate the number of neutron in 3 of them. How can we calculate it? We subtract the atomic number from atomic mass or the mass number. ठीक है? In case of the protium, 1 minus 1, आप देखें number of neutron comes to be 0. In case of deuterium, 2 minus 1, number of neutron comes to be 1, and in case of the tritium, number of neutron comes to be 2. These are basically the 3 variants or the 3 isotopes of the hydrogen atom, like these 3 identical triplets. इनके सिर्फ मास में डिफरेंस है, मास नंबर में डिफरेंस है, वैसे ये बिल्कुल सेम है. सेम इज़ द केस विद द कार्बन एटम. अभी हम इनको आगे ज़रा फर्दर और डिस्कस करेंगे. कार्बन में देखो परसेंटेज 98.9% है. ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बन एटम है. 12, 13, 14 ये 3 आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, एंड 98.9% ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बन 12 है इनमें से. इनको भी हम आगे 1 by 1 डिस्कस करते हैं. of hydrogen, 3 isotopes हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम. तीनों में डिफरेंस कहाँ आ जाता है और सिमिलैरिटी कहाँ है? 3 of them have the same number of proton, that is 1. इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 1. ठीक है, 1. एटॉमिक नंबर शोज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. आप तीनों में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन इनके शेल में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है? हाइड्रोजन 1 है, ड्यूटियम इज़ हाइड्रोजन 2 और ट्राइटियम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन 3. 1, 2 एंड 3, ये 1, 2, 3 ये वेरिएंट्स हैं, ये डिफरेंट है. बेसिक एटम जो है वो हाइड्रोजन का ही है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है. यहाँ पे भी आप देखो 1 प्रोटॉन है. यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है.
ठीक है। इसी तरह ट्रीटियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं, टोटल 3 हो गया, ये हाइड्रोजन 3 है। न्यूक्लियर न्यूट्रिशन आप देखो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम की, ठीक है। प्रोटियम में आप देखो 1 1, ये 1 हमें क्या शो कर रहा है ऊपर वाला, ये क्या है, इसका मास नंबर जो कि 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट में ड्यूट्रियम में देखो 2, तो इसका 2 है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन आ गया ना। ट्रीटियम में हमारे पास 3, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे 3 आ गया। इन केस ऑफ प्रोटियम आप देखो ये सिंगल एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में दैट हैज़ नो न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। ये 3 आइसोटॉप्स हमारे पास हो गए हाइड्रोजन के, क्लियर है। For instance, take an example of the carbon atom. In the carbon atom, we have 6 protons, 6 neutrons, and 6 electrons are revolving around the nucleus of an atom. ये कार्बन 12 आइसोटॉप है, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन्स हैं इसमें, 12 is its mass number and 6 atomic number. The isotopes of an element we know they differ only in the number of neutrons. अब कार्बन 12 में न्यूट्रॉन्स हैं 6. Now consider the कार्बन 13. यहाँ पे आप न्यूट्रॉन काउंट करें, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं जो कि ऑरेंज बॉल से हम शो कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम एज इन द कार्बन 12, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दे ओनली डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर नाउ 7 इन कार्बन 13 और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टेक द कार्बन 14, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स हैं। नाउ काउंट द ऑरेंज बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूट्रॉन्स कार्बन 14 में। So carbon 12, 13 and 14 they have same number of the 6 protons but they differ in the number of neutrons. Carbon 14 has 8 neutrons, carbon 13 has 7 and carbon 12 has 6 neutrons. न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर देखेंगे क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आर बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन जो हमारे पास दिया गया है इसमें ऊपर एटॉमिक नंबर है 17, ये 17 एटॉमिक नंबर में हमने लिखा। अब दो भी क्लोरीन, आपको पता है ना एटॉमिक नंबर इज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लोरीन जो सा मर्जी आइसोटॉपों का एटॉमिक नंबर हमेशा क्या है 17, डेट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम प्रोटॉन्स में भी लिख देंगे 17, ठीक है। तो क्लोरीन एटम जो है ये अगर है एटम की फॉर्म में है तो फिर इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 7 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। अगर तो ये आयन बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फिर हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। लेकिन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 17 है तो हम इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 ही होंगे, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, हम इसका मास नंबर देखेंगे, इसका मास क्या है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमने निकालने हैं मास नंबर से। किस तरह निकालने हैं आप देखो, मास नंबर है हमारे पास 35.45, ठीक है। हम 35 इसका लिखते हैं, ये हमारे पास मास नंबर है। मास नंबर हो गया 35। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमने अभी देखे थे, दे आर द 17। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की जगह पे x लिख दो, 35 माइनस 17, आप माइनस कर दोगे ना, द आंसर कम्स टू बी 18। So this atom of chlorine has 17 neutrons, ठीक है। मास नंबर 35 है तो हम लिखेंगे क्लोरीन 35। क्लोरीन 35 में हमारे पास 17 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया, क्लियर है ये बात। अब मास नंबर हमें से हमने निकाला है ना, न्यूट्रॉन निकाले हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आइसोटॉप होता है वो होता है 37। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह, हमें पता है प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं, हमने सिर्फ माइनस करना है। 37 में से 17 माइनस किया, आंसर आपके पास क्या आया 20। ये आइसोटॉप कौन सा है, आइसोटॉप 37।
क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम एटॉमिक नंबर, बट दे डिफर इन मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो एटॉमिक मास एवरेज में लिखा हुआ है ना, ये एवरेज होता है, इन दोनों की एवरेज लेके इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं 35 एंड 37, उनका मास नंबर जो होता है वो हम आइसोटॉप्स के साथ लिख देते हैं। क्लियर? Now let's summarize what we have learned about the isotopes. Isotopes are atoms of the elements that have same number of protons and number of electrons, but they have different number of neutrons. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स while they have different number of neutrons. Second point is they have same atomic number, as they have same number of proton and number of the protons is equal to the atomic number, so they have same atomic number, but they differ in mass number. Mass number is, do you remember, number of proton and neutrons, as they differ in neutrons, so mass number is also different. Isotopes have same chemical properties. You know, chemical properties depend upon the electronic configuration, and the electronic configuration is based on number of the electrons. हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिसेंटली पढ़ी है ना, हम किस तरह देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है। तो they have the same number of electrons, isotopes have the same number of electron, that's why they have same electronic configuration, and due to the same electronic configuration they show the similar chemical properties, while they have different physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन द मास, इनका मास चेंज होता है ना, डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे मास वेरी करेगा वैसे वैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी वेरी करेंगी। ये एक सम अप था जो हमने पढ़ा आइसोटॉप्स के बारे में, ठीक है।